Yes, class 12th students, please open your book, chapter number 8, short-run equilibrium in the macroeconomics books, and page number 215, topic number 3, determination of equilibrium output GDP or equilibrium income. Listen, we will also called output as a income. Okay, so don't be confused if anywhere is output is written and somewhere is income is written. The meaning of both output and income is same. Okay, income means be income and output means whatever output you have so produced, whenever you will sell, then you will get back money. Okay, so in this we will discuss how equilibrium income will come. Simply, there are the two aspects, two determinant components by which you will get the equilibrium income. The first one approach is aggregate supply is equals to aggregate demand. Okay beta, this is written here, aggregate supply equal aggregate demand. See, when aggregate supply is equals to aggregate demand, in that situation you are having equilibrium income. Or another one is whenever saving is equals to investment. Okay, see first approach, that is aggregate supply is equals to aggregate demand beta. Okay, according to this approach, equilibrium GDP or income is achieved when aggregate supply is equals to aggregate demand. Now what is aggregate supply? We have already discussed in the previous chapter. Okay, कि whatever planned output is produced in an economy. Okay, and in the previous chapter we have discussed. Okay, and the income whatever is produced, the output will be our income, and that will be indicated by a 45-degree line angle from the origin. Okay beta, and in the economy it is and the main assumption that the price will remains constant. Okay, it is an economy when excess capacity whereas responds proportionately to aggregate demand and price unaffected. Okay, price should be constant. तो see the figure where income is 0, 30, 50 and aggregate supply. मैंने ऑलरेडी बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा बेटा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू आर इनकम एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, हमेशा इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ही रहेंगे. ठीक है, नाउ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज़ द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और यू कैन से प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी during an accounting year. Okay, so it has two components aggregate demand. Number one is consumption expenditure and another one is investment expenditure, but we have to let investment expenditure as assumed autonomous, because wherever you are having desired consumption expenditure, in that situation investment will be negative, and after that the particular criteria will be invested. In that situation investment expenditure is let as autonomous. Autonomous means minimum level. Okay, and you know very well, as I told you, ki autonomous expenditure. Okay, but the consumption expenditure related to the level of income. Okay, so there is positive relation between consumption and income. ओके, पहले भी मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता है वैसे वैसे इनकम राइज होती रहती है. तो ऑलवेज देयर विल बी मिनिमम लेवल ऑफ इनकम इवन व्हेन एवर. Okay, minimum level of consumption independent when even will be in there will be income equals to जीरो. भले ही इनकम जीरो है तो उस सिचुएशन में कम से कम कुछ ना कुछ हमारा कंजप्शन रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो ऑन दैट डिस्क्रिप्शन इन इन्वेस्टमेंट फंक्शन विल ऑल्सो बी कंबाइंड. तो वेन एवर वी विल कंबाइन द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, बट वी हैव टू लेट एज इन्वेस्टमेंट एज कॉन्स्टेंट. ठीक है, जितना भी हमारा मिनिमम कंजप्शन है ना, वो हमारा क्या मान लिया जाएगा? इन्वेस्टमेंट है, और वो हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, तो मिनिमम लेवल का जो कंजप्शन रहता है वही हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो हियर यू कैन सी इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज गिवन, तो दैट इज कांस्टेंट, एंड व्हेनेवर समथिंग विल बी कांस्टेंट तो दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इन द फर्स्ट डायग्राम you can see here in the box this given description is given. All investment is treated as investment expenditure. Okay, I is not related to income, so that it is horizontal to straight line. Okay, there will be no relation between income and matlab in relation, some relations are there, but this is not related to income. Okay, investment is
upon the income or as well as wishes of the consumer, but consumption is related to so that is why consumption is positively related to income, as you can see here. पहले भी बता चुका हूँ कि इनकम बढ़ती जा रही, देखिए 20 40 60, तो सेम वे कंजप्शन भी बढ़ता चला जाएगा एट 1 पॉइंट ऑन 60 60 बोथ आर इक्वल, आफ्टर दैट कंजप्शन डिक्लाइन एंड इनकम राइजेस, ठीक है। पर ये होता है कि इनकम ज़्यादा रेट पे बढ़ती है, कंजप्शन कम रेट पे बढ़ता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, दो बट इक्विलिब्रियम इनकम यू विल गेट व्हेन एवर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। Now you can see on the next page one combined diagram is given, so that you can also prepare by the help of common table where ऑलरेडी वी नो कि इनकम का अपने और कंजप्शन का रिलेशन से तो कर्व बनाई हुई है, और एडी से भी एग्रीगेट डिमांड की भी बनाई है। तो अब एक टेबल का डाटा सेट ये हमारे पास दे रखा है, इसको टेबल के बेस पे कर्व बन जाएगी, ठीक है। इनकम हमारी और कंजप्शन की लाइन आएगी, और फिर कंजप्शन से जो भी हमारी इनकम बचती जाएगी आफ्टर कंजप्शन, वो हमारा क्या होता चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। और जब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड होता चला जाएगा। तो तीनों को मिला करके ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मिनिमम लेवल पर पे इन्वेस्टमेंट कंजप्शन कितना है, 30 है। इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट माना गया है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर दैट विल बी 20, ओके। और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर अगर जोड़ा जाए तो 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 विल बी आर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जब हमारा 100 पॉइंट पे आएगा तो जो वो सिचुएशन होगा दैट विल बी आर इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। ये देखिए नीचे टेबल में वही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है टेबल बना करके भी, जैसे इनकम 0 20 40 60 थी, ठीक है। कंजप्शन भी बढ़ता चला गया, आय भी बढ़ता चला गया, बट वी आर प्रूविंग दैट व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। इनकम हमारा एएस है और कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। तो एट अ स्टेप वेन एवर यू आर अर्निंग 100 करोड़, योर कंजप्शन विल बी 80 करोड़ एंड यू आर इन्वेस्टिंग 20 करोड़। तो इन दैट सिचुएशन बोथ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट वर इक्वल्स टू 80, यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग, ठीक है। तो दैट सिचुएशन विल कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, दैट वी विल डिस्कस लेटर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के अप्रोच में किस सिचुएशन में हमारा इक्विलिब्रियम इनकम आएगा, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग बाय द हेल्प ऑफ टेबल, तो आप लोग उसके हेल्प से अपने नोट्स को बना लीजिए। हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफिकली, मतलब टेबल्स तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए, डायग्राम भी दिखा दिए, ठीक है। तो अब इसी का अगर एक मिक्सचर बना करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है आपको, ठीक है, कि जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा।